everyone at some point in time felt that अभी नहीं होगा हमसे, अब बस बच्चा कितना कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, कितना अच्छा उसका कम्युनिकेशन है, कितना क्लियरली वो अपनी बात को स्टेट कर पा रहा है। बिकॉज पीएचडी के वाइवा में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने होते हैं एंड यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। बहुत से टीचर्स में ये क्वालिटी लैक करती है, जहाँ पे बच्चे डरते हैं कि भाई अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं डांट ना पड़ जाए। कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो फिर आप कभी भी वो काम पूरा नहीं कर सकते। मुझे मतलब लग नहीं रहा कि शिवांशी वो थी इसको मैंने पढ़ाया था। लुक एट यू, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, सच अ गुड कम्युनिकेटर you have become. So I think this is what other students should learn from you. Hi everyone, welcome to उत्कर्ष यूजीसी नेट। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर कृतिका मल्होत्रा, who has been my professor in college. And Kritika ma'am has done PhD in marketing, also qualified for NET, and she has dual masters. So welcome ma'am, welcome to Utkarsh, welcome to this podcast. We are grateful that you have joined. Thank you so much, and it's an honor for me to be connected to you, to Utkarsh, and it was a pleasure teaching you at college, and I hope that we generate some good insights today with the podcast. हाँ जी मैम। तो कृतिका मैम, जैसे कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, could you briefly introduce yourself to our viewers? Yeah, my name is Dr. Kritika Malhotra, and I'm an assistant professor at National PG College, Lucknow. And been born and brought up in Lucknow, and I did my research in marketing, which was perhaps my favorite subject at MBA level, and I wanted to explore more into the subject matter. So I pursued my marketing, qualified my NET, and I've been teaching for more than a decade now. And it is a pleasure to see my students excelling so well and doing so well in their lives. हाँ, तो मैम जैसे आप तो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर, व्हाट डू यू थिंक हैज बीन योर बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द करियर? I think my biggest turning point in a career was that from day one, I knew that I have to learn something new every day. Continuous learning has been my turning point, and I think that is the only way in which we as an academician can deliver uh, to the students something new, because the markets, the scenario is changing day by day. We are seeing new professions, new careers emerging. We are seeing new concepts emerging. So if we indulge into continuous learning every day, I think then we can deliver our best to the students. बिल्कुल। आप मार्केटिंग में प्रोफेसर हैं, आपने मार्केटिंग में पीएचडी करी है, तो व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू कि आप मार्केटिंग अपना डोमेन चूज करें? Actually, I feel that marketing is a very fascinating subject because it drives out curiosity in you that how the managers, the companies are able to understand consumer needs, consumer preferences, and then deliver them accordingly. And I also feel that this field has evolved a lot because traditional marketing की अगर हम लोग बात करें तो we were limited to television, newspaper. But today we see that social media, AI has transformed this field to a great extent. Today we can understand that what drives our consumers, what are the consumers looking for, क्योंकि हर आदमी आजकल इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे है, ट्विटर पे है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि आपके कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, जो मुझे लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट था. सो आई थिंक दैट इज द वे कंपनीज आर एबल टू प्रोड्यूस something that is very relevant these days. हाँ जी। तो मैम, हाउ डू यू सी एआई चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग? अभी जैसे रिसेंटली व्हाट हैज बीन द Yes. ट्रेंड? I feel that AI has, transformed everything to a great extent. Particularly if we talk about generative AI, then generative AI is something which is used a lot these days for content creation. And I think today, आज जो भी व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है वो रिव्यूज जरूर पढ़ता है. पहले के समय में मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी अवेयरनेस आज कंज्यूमर्स को है. तो सब रिव्यूज पढ़ते हैं. लुक एट मशीन लर्निंग, हाउ इट इज पर्सनलाइजिंग थिंग्स फॉर यू. क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कुछ भी सर्च करते हैं अगर, तो हमें उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आने लगती है. तो ये सब मशीन लर्निंग के कारण हो पाया है कि वी आर sending them personalized messages. We are interacting them to a different level. Today, you understand the consumer more.
and that is why I think you are able to deliver more. और मुझे लगता है कि today the race is not about AI versus human. I think if we understand that if we can use human intelligence in collaboration with AI, then I think we can transform the field of marketing and we can transform the way we are delivering services and products to consumers. So I think AI plus human intelligence something which can be a great collaborator for बिल्कुल future. हाँ जी तो दिस वाज अबाउट एआई एंड मार्केटिंग टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स मैम आपको हमेशा से पता था कि आपको रिसर्च में आना है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर योर करियर इवॉल्व्ड ओवर टाइम क्या आप हमेशा से देखिए, श्योर थे कि आपको इसी फील्ड में आना है और आपको पीएचडी करनी है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आई थिंक ये कोई प्लानिंग में नहीं था मेरी कि ओके मैं टीचिंग में आऊंगी एंड आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग एंड लविंग टीचिंग सो मच. Basically, when you do your MBA, you dream of getting into corporates. But thereafter, I started preparing for NET. I qualified NET, and many people told me that teaching is a very wonderful experience. So I got into academics, and from day one, I felt that instilling that confidence in students gives me so much satisfaction, so much happiness, which I think I would have not received in any other job or any other workplace. So each day, talking to new bunch of students every year, interacting with them, making them learn new things, focusing on the holistic development of students, telling them about various life lessons, about the subject matter, that gives me a lot of satisfaction. And I think academics is a wonderful field because it helps you to grow, it helps you to evolve every day. Because today's students are also very smart and they question a lot, they have different perspectives about different things, they are more exposed to knowledge, and imparting or interacting with them, imparting knowledge to them is a challenge also. बिल्कुल Like it is not an easy job, but it is, teaching, I believe, is a two-way process. It is not a one-way process, because when students are asking questions to us, we are also exploring into some new dimensions, because they are generating critical thinking in the classroom. बिल्कुल So I think that is, really, excites me about my job. And I'm happy and satisfied that I chose academics as a career for me. I have been your student and I still remember all the things, the life lessons you used to give in the classroom. और जिस तरीके से आप हमेशा डिलीवर करते थे कंटेंट वो एकदम से वो फील होता था कि कनेक्शन फील होता था टीचर के साथ एंड दिस कनेक्शन इज द मेजर पॉइंट कि बच्चे टीचर से अगर कनेक्टेड फील करते हैं तो आई थिंक कि वो ज्यादा समझ पाते हैं उस चीज को बिल्कुल, और मैं कहूँगी इसमें मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर वो मुझे सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएँगे. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्टूडेंट्स हू कनेक्ट विद मी सो वेल, एंड this connection, I think, is something which is going to be having a lasting impact on their careers It, also. it is an honor that I'm speaking with you on this podcast और आपके साथ ये डिस्कशन कर रही हूँ आफ्टर बीइंग योर स्टूडेंट. तो मैम आपने जब नेट क्वालिफाई किया तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम नेट के लिए आपने कितना समय दिया पढ़ने के लिए और किस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन की अप्रोच रखी Okay, so once I thought that I would be preparing for NET, the first thing that I did was to time myself according to different papers that we have to give in NET. However, now the curriculum has changed a lot. Earlier, it used to be subjective. The paper 3 used to be subjective, but now it is entirely MCQ based. So I think अगर बच्चा पिछले 10 सालों के पेपर को जरूर सॉल्व करे, एक्सटेंडेड वे में सब्जेक्ट को डीपली पढ़े. लाइक इफ दे आर स्टडिंग अ क्वेश्चन, इट हैज 4 ऑप्शंस. If they're solving a paper and a question has 4 options, they must study each and every option, each and every term very well. तो वो एक्सटेंडेड नॉलेज उनको जनरेट करना बहुत जरूरी है. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दे ऑल्सो हैव सम एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च, teaching, people, environment, general awareness, which again is a very important factor when it comes to preparing for NET exam. And particularly if I talk about subject knowledge, then I think the children must dedicate a good amount of time. They can undergo various coaching services that are being offered, because there they get a vast span of knowledge, जो कि मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं जब अपने लेवल पे पढ़ते हैं तो उस तरह से उनको वो कनेक्ट नहीं फील होता. और मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंसिस्टेंसी आपकी तभी आती है जब आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स लगाएं,
डेली आप कुछ रीड करें. न्यूज़पेपर रीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट दे मे बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. तो डेली आपको पढ़ना, कंसिस्टेंसी रखना, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना और हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेना. दे शुड नो द टर्म्स वेरी वेल. दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जाम्स. हुँ, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है यूजीसी नेट में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो बच्चों के मन में एक मेजर सवाल ये रहता है कि भई हमारे जो पेपर 2 है उसमें 10 यूनिट्स है। वो सारी हम लोगों ने बीकॉम और एमकॉम में जो पढ़ रखी होती हैं बैचलर्स और मास्टर्स में। तो बच्चों के मन में एक सवाल ये आता है मैम कि क्या हमें हर यूनिट के लिए एक अलग बुक रेफर करनी चाहिए या फिर हमें कहीं से कोई कंटेंट ऐसा मिल जाए जहाँ पे सारा कुछ क्रिस्प वे में है? मतलब आपकी क्या अप्रोच है उसको लेके? मुझे लगता है बुक रीडिंग तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, हुँ, बट कई बार क्या होता है कि आपके पास स्पैन ऑफ टाइम कम होता है एंड यू हैव टू मेक अ क्विक प्रिपरेशन. आपको हैंडफुल अमाउंट ऑफ नोट्स चाहिए जो आपने जल्दी से गो थ्रू करें और आप एग्जाम देने चले जाएं. तो नोट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. और बुक रीड करके आप अगर अपने लेवल पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और उनको इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप एग्जाम से पहले उनको एक रीड करके एक आपका एक थरो रिवीजन हो जाए. तो मुझे लगता है कि नोट्स प्रिपरेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बुक रीडिंग भी. लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको अलग बुक रेफर करनी पड़ रही है तो यू शुड नो वेरी वेल कि किस बुक में हमें कितना सब्जेक्ट मैटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल। तो उसके लिए अगर मुझे लगता है कि आपके पास से कंप्राइज नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका टाइम भी सेव होता है. और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डीप आपको नॉलेज चाहिए, तो कंप्राइज नोट्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो आई थिंक आपके लिए एक ईज़ होता है प्रिपेयर करने का उस सब्जेक्ट के बारे में. हाँ, तो मैम जैसे आपने बताया नोट्स के बारे में, क्या बच्चों को अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर वो कहीं से भी नोट्स रेफर कर लें? मैं तो बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि यू शुड लर्न हाउ टू राइट वेल. हुँ, हुँ। तो आप अच्छा आंसर लिखने के लिए आप पढ़िए, फिर अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस करिए, उसको समझिए, ताकि जब आप लिखेंगे तो आई थिंक आपको जल्दी वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा और आपको रिकॉल वैल्यू उस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा जल्दी होगी. तो मुझे लगता है आई थिंक आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू शुड राइट. यू शुड राइट सही बात है मैम। यस. क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर बच्चा अपने आप से लिख रहा है, तो वो कुछ लिखता है तो कुछ समझ के लिखता है। समझ के लिखता है. हाँ, और मुझे लगता है लिखे हुए की रिकॉल वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ हाँ, कम्पेयर टू व्हाट यू हैव रेड. हाँ, हाँ, बिल्कुल। राइट। तो ये तो बात हो गई पेपर 2 की। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम पेपर 1 नहीं भी पढ़ेंगे या पेपर 1 को इक्वल वेटेज कुछ बच्चे नहीं देते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका नेट क्वालीफाई हो जाएगा या वो जेआरएफ क्वालीफाई कर लेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ पेपर 1 फॉर दिस एग्जामिनेशन जिसमें 10 यूनिट है और वो सारे के हुँ. सारे यूनिट्स हमारे टीचिंग, रिसर्च वो आगे जो काम आने वाले यूनिट्स हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है पेपर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज तो आप रेगुलर उसमें आपको मिलती ही रहती है, बट उ उस पेपर के लिए आपको अलग से टाइम डेडिकेट करना है, क्योंकि वो पेपर आपकी बहुत बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है. हुँ, एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स गेटिंग कन्फ्यूज्ड एट सम वेरी बेसिक एंड वेरी ईज़ी क्वेश्चन्स. तो आई थिंक उसका एक थरो रिवीजन करना, उस पेपर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना और उस तरह के पेपर्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा पेपर्स आप लगाएँगे, मुझे लगता है उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएँगे कि किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं. हुँ, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में या पीपल एंड एनवायरनमेंट में या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के, जनरल अवेयरनेस के, तो वो जितना ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करेंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस लेवल तक की पढ़ाई उस पेपर के लिए करनी है. हुँ। और उसी से आप वो उसमें आप स्कोर कर पाएँगे. तो मुझे लगता है कि बच्चों को वो पेपर को दे शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ दैट पेपर. दे शुड फोकस इक्वली ऑन दैट पेपर एज़ मच एज़ दे आर फोकसिंग ऑन पेपर नंबर 2. बिल्कुल, बिल्कुल। वही कुछ बच्चों को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि भई पेपर 1 और 2 को कैसे वेटेज देना है, तो दे शुड कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच दोनों चीज़ों के लिए। यस. जी, मैम। व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन योर पीएचडी जर्नी? जब आपने नेट के बाद में पीएचडी आप कर रहे थे, तो कुछ चैलेंजेस ऐसे रहे, आपको लगा कि आप क्विट कर दें या फिर कभी ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू फेल्ट लाइक क्विटिंग और गिविंग अप? आई थिंक मुझे लगता है ये सबके साथ होता है, बिकॉज़ आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल who have pursued their PhD and everyone at some point in time felt that अभी नहीं होगा हमसे, अब बस I will not be able to complete it. तो आई थिंक ये एक हर्डल है जो हम लोग सब फेस करते हैं. और बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट,
being patient, being disciplined, being perseverant is only the factor which keeps us motivated throughout. Ki we don't have to lose hope, we don't have to give up. We know we can complete it. We start doubting ourselves a lot, I think, during that process. बिल्कुल। And जब कोई सेटबैक होता है या जब कोई हर्डल आता है बीच में, आपको लगता है कि जो मैं करना चाह रही थी वो नहीं हुआ, या माय मेंटर इज आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू माई मेंटर्स, तो वहां पे आपको एक मेजर सेटबैक फील होता है. But I think if you are patient enough, if you're disciplined, and if you are eager, curious to do it, then I think you will definitely do it. And I think PhD journey teaches you a lot. Besides, getting that name doctor in front of your writing doctor in front of your name, I think it teaches you a lot. It teaches you perseverance. It teaches you being resilient. Uh, आप जो है कॉन्फिडेंट फील करते हो when you are able to clear that doubt, and when you come out of it, then you feel that okay, I was just doubting myself, but I can still do it. So I think that spirit should be maintained. बिल्कुल। आजकल आप कॉलेज में जैसे देखते होंगे व्हाट आई फ़ील कि कॉलेजेस में या स्कूल लेवल पे करियर काउंसलिंग बच्चों की नहीं की जाती है। तो बिल्कुल. बच्चे वहाँ पर मैम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं उस पॉइंट पे बच्चे ग्रेजुएशन में भी एनरोल कर चुके होते हैं, तो भी उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। और Hmm. आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट इज़ लैकिंग उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉलेज में आप जैसे ट्रेंड देख रहे हैं, बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है? बिल्कुल, मैंने ये चीज़ बहुत पर्सनली भी देखी है कि स्कूल लेवल पे द स्कूल्स ओनली फोकस ऑन द मार्क्स हुँ, एंड दे गिव यू सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली. हुँ, देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे की लाइक्स, डिसलाइक्स क्या हैं, बच्चा आगे क्या करना चाहता है. समटाइम्स इट इज़ पैरेंटल प्रेशर दैट नो यू हैव टू टेक साइंस, नो हुँ। यू हैव टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स, जबकि बच्चे को मैथ्स में पढ़ने में बहुत चैलेंज आ रहा होता है. तो मुझे लगता है करियर काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. और अगर पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री इंडिया, हुँ, करियर काउंसलिंग स्कूल लेवल पे आई थिंक इट इज निल. इट डजंट हैपन. इट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर स्टक समवेयर एंड यू गो टू अ काउंसलर और आप उससे कोई हेल्प या कोई राय आप किसी चीज के लिए ले. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कंफ्यूज होते हैं कि वो स्कूल से पढ़ के चले आते हैं, फिर ग्रेजुएशन में वो उनकी पूरी जर्नी कंफ्यूजन में ही निकलती है कि हम करना कुछ और चाहते थे, पढ़ कुछ और रहे हैं, वो कुछ और रहा है. तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आता बच्चों में. देन स्टूडेंट्स लुक आउट फॉर मेंटर्स. मेनी टाइम्स देयर आर स्टूडेंट्स हु डोंट गेट एनी मेंटर्स. आपको कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं मिलता, आपको कोई समझने वाला नहीं मिलता, तो वो बच्चा लाइफ में फिर स्ट्रगल ही करता रहता है. तो मुझे लगता है कि अगर स्कूल लेवल पे और मे बी कॉलेज लेवल पे करियर काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और ये काउंसलिंग एक जनरल लेवल पे नहीं हो, ये वन टू वन लेवल पर हो. हुँ, वो स्कूल लेवल पे भी हो, वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी हो, टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है. आजकल हम लोग देख रहे हैं बच्चे बहुत सारे स्ट्रेस से पीड़ित हैं. इतना कंपटीशन है, तो एवरीबडी वांट्स टू एक्सेल, हुँ। बट दे डोंट गेट द राइट स्कोप, दे डोंट गेट द राइट प्लान फॉर देमसेल्व्स. तो मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग को हमें बहुत फोकस करना चाहिए. आई सी कंट्रीज लाइक फिनलैंड, आयरलैंड, दे फोकस सो मच ऑन दिस कि उनके स्कूल लेवल से ही बच्चे की पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं, उसको बताते हैं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं. देयर आर सो मेनी टेस्ट गिवन हुँ, बाय सो मेनी वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट. एंड आई थिंक इफ दीज टेस्ट आर यूज्ड इन इंडिया, तो हम लोग अपने बच्चों को और बेहतर बना सकते हैं. बिल्कुल मैम सही कह रही हैं आप कि करियर काउंसलिंग जो लैक कर रहे हैं अपने कंट्री में, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वो उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको आगे करना क्या है। ग्रेजुएशन में एनरोल कर लिया उन्होंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल कर लिया, स्टिल दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू। बिल्कुल. और मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे जो है वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं हुँ। कि जो सब कर रहे हैं चलिए हम भी वही कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस में दे फेल टू डिस्कवर देमसेल्व्स. एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि आप अपने आप को जान ही ना पाए, सेल्फ डिस्कवरी कर ही नहीं पाए. हुँ। Also, I would like to mention here कि Dr. Kritika has contributed to several research papers and she has also authored a book on research methodology. तो अब हम बात करेंगे कुछ PhD के बारे में. मैम, many students aspire to pursue a PhD. तो क्या एक ऐसी चीज है जो उनको पहले से पता होनी चाहिए? What should they know before taking that step कि भाई उनको PhD में जाना है?
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप वो कमिटमेंट अपने आप से कर पाते हैं कि ठीक है, मैं पीएचडी में एनरोल हो रही हूँ, दे आर गोइंग टू इट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस, देयर आर गोइंग टू बी मेनी सेटबैक्स, मेनी हर्डल्स, बट अगर आप कमिटेड हैं कि आपको वो कंप्लीट करनी है, आप परसिवरेंट हैं, आप पेशेंट हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप क्यूरियस हैं, you are doing critical thinking, you are choosing the right topic. I think selection of the topic for a research is the most important factor. और वो टॉपिक का सिलेक्शन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, तभी आप क्यूरियस होके उस सब्जेक्ट के बारे में और पढ़ना चाहेंगे। अगर बिल्कुल। आपके ऊपर कोई टॉपिक थोप दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि आप क्यूरोसिटी से नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें इन डेप्थ जानकारी नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि टॉपिक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बच्चे जितना ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, उतना बेहतर वो रिसर्च गैप निकाल पाएँगे। और जब रिसर्च गैप वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँगे, तो मुझे लगता है कि वो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे रिसर्च में। तो कमिटमेंट होना चाहिए आपका, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, आपको क्यूरियस होना है, बिफोर यू थिंक ऑफ एनरोलिंग योरसेल्फ इन अ पीएचडी प्रोग्राम। मैम, हाउ शुड स्टूडेंट चूज अ मीनिंगफुल रिसर्च टॉपिक? वो कैसे अपना, मतलब जैसे कॉमर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स है, मार्केटिंग हो गया, एचआरएम हो गया, फाइनेंस हो गया, तो एक टॉपिक चूज करना और उसका टाइटल डिसाइड करना और फिर उस पे रिसर्च प्रपोजल बनाना, इस चीज पे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि मास्टर्स में ये रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, और फिर जब वो नेट की प्रिपरेशन करने लगते हैं तो भी उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बट आफ्टर क्लियरिंग नेट वो जाते हैं जब पीएचडी करने, तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई अब हम रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं। तो उस हुँ। पे आप। मुझे लगता है कि हर बच्चे का कोई ना कोई इंटरेस्ट एरिया होता है, हम्म। जो वो पढ़ते-पढ़ते एक्सप्लोर कर लेता है कि मुझे फाइनेंस इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे मार्केटिंग इंटरेस्टिंग लग रही है। When talking about marketing, if I talk about marketing, there are so many, domains of marketing. Like consumer behavior is one domain of marketing. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा डोमेन या कौन सी की एरिया आपको इंटरेस्ट करती है ज़्यादा, और आप उसके बारे में और जानकारी करना चाहते हैं। हम्म। तो आई थिंक जब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक चूज़ करेंगे, जिसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उस सब्जेक्ट मैटर को और पढ़ नहीं पाएँगे। तो आप अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफ़ाई करिए। अपने इंटरेस्ट एरिया में आप देखिए कौन-सा डोमेन है या कौन-सी नॉलेज है जो आपको और इन यू वांट टू एक्वायर इट मोर। तो जब वो आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, तो आई थिंक आप एक बेहतर टॉपिक अपने लिए प्लान कर पाएँगे। और और अच्छी प्लानिंग करनी है तो आई थिंक यू कैन स्टडी मोर एंड मोर रिसर्च पेपर्स, बिकॉज़ रिसर्च पेपर्स हेल्प यू आइडेंटिफाइंग कि मार्केट में क्या गैप चल रहा है बिल्कुल। या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनडिस्कवर्ड हैं, अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड न्यू डायमेंशंस इन वेरियस स्टडीज़। ओके। मैम, जब बच्चे पीएचडी में जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल तो उन्होंने सबमिट कर दिया, फिर होता है इंटरव्यू राउंड। अब हुँ। एज यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जब बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, आपके सामने अगर कोई आ रहा है इंटरव्यू देने पीएचडी के लिए, तो क्या वो चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए? क्या वो चीजें हैं जो प्रोफेसर मेजरली नोटिस करते हैं जब वो एक पीएचडी के लिए बच्चा सिलेक्ट कर रहे होते हैं? उस बारे में बताइए। जनरली क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं तो दे वो अपना एक टॉपिक लेकर आते हैं हम्म। कि मुझे इसमें स्टडी करनी है। हम्म। और हम लोग ने कई बार देखा है कि वो टॉपिक भी जो बच्चा लेकर आता है उसके बारे में भी उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि जब आप कोई भी चीज़ फ्रेम करें तो आप उसकी भरपूर इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, हम्म। नंबर 1। नंबर 2, आपको आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है कि क्या आप ये टॉपिक चेंज कर सकते हैं? क्या आप इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं? तो मुझे लगता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैकेज के साथ आप एक इंटरव्यू में जाइए, और वो लेवल ऑफ कमिटमेंट, वो डिसिप्लिन आपका विज़िबल होना चाहिए मेंटर्स को, जो आपको उस इंटरव्यू प्रोसेस में स्कैन कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा होमवर्क करके आते हैं कि भई ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या डायमेंशंस हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से क्या हम कंट्रीब्यूशन कर पाएँगे एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे को इसकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज मैं अगर इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो इस रिसर्च से क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को, बिज़नेसेस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो और आगे रिसर्चर्स आएँगे, उनको क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च से। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। वो वहां पर पैनल मेंबर सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। फ़ोकस करते हैं, यस।
कि आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, हाँ। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू टू द इकोनॉमी, टू द वर्ल्ड बाय थ्रू योर रिसर्च, तो दैट शुड बी क्लियर। डू दे ऑल्सो सी कि कितना कॉन्फिडेंट है ऑफ बच्चा कोर्स, सामने? बिल्कुल कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये तो मुझे लगता है आज के ज़माने में ऐसे टर्म्स हैं जो हर बच्चे के अंदर इम्बाइब्ड होने चाहिए कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, कितना अच्छा उसका कम्युनिकेशन है, कितना क्लियरली वो अपनी बात को स्टेट कर पा रहा है, बिकॉज पीएचडी के वाइवा में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने होते हैं एंड यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। तो अपनी डिफेंस में आप कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट रखते हैं, कितना क्लियर पिक्चर आप दिखा सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई बिल्कुल। थिंक कॉन्फिडेंस, आप जब आपके पास नॉलेज होगी कंटेंट की, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर झलकता है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। मैम, व्हाट मेक्स अ गुड रिसर्च स्कॉलर? बच्चा जब पीएचडी में एनरोल कर लिया, अब वो पीएचडी कर रहा है, तो एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए कि वो भाई कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहे, पेशेंस उसके अंदर होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर है जब वो बच्चा पीएचडी कर रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है रीडिंग। हुँ, द चाइल्ड शुड कीप ऑन रीडिंग, नए-नए रिसर्च पेपर्स पढ़ना, नए आर्टिकल्स पढ़ना, नई नॉलेज को इनटेक करना और उसको कैसे हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करके अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकें, नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना। और जैसे मैंने कहा कि जब वो रिसर्च टॉपिक चूज़ कर रहा हो, तो वो अपने इंटरेस्ट एरिया का चूज़ करे और बहुत इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहे। हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करे अपने काम में, हर दिन कुछ ना कुछ ऐड ऑन करे अपनी रिसर्च में। तो वो मुझे लगता है कि रिसर्च स्कॉलर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कमिटेड नहीं हैं, तो फिर आप कभी भी वो काम पूरा नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी-किसी की रिसर्च को बहुत टाइम भी लग जाता है। देयर इज़ नो बिल्कुल, लिमिट। हाँ। राइट। तो वो व्हाट डू यू थिंक कि रिसर्च स्कॉलर गलतियाँ कर सकते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक्स स्कॉलर्स मेक व्हाइल डूइंग रिसर्च, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो गलतियाँ करते हैं, फिर उनको लगता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है मैम? मुझे लगता है कि एक तो जैसे हम लोगों ने अभी बात करी, द राइट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, बिल्कुल। फाइंडिंग द राइट रिसर्च गैप, हुँ, फ्रेमिंग द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर रिसर्च। आपका जो टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल उससे इंक्लाइंड होने चाहिए। द मीनिंग शुड कम आउट वेरी क्लियरली कि आप अपने टॉपिक के थ्रू, इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ये रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। आई ऑल्सो थिंक कि सही टूल इस्तेमाल करना, क्योंकि आप अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें, तो देयर आर सो मेनी टूल्स टू अंडरस्टैंड कि हमें कोरिलेशन यूज़ करना है, कि रिग्रेशन यूज़ करना है, कि हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको तभी क्लियर होता है, एक स्कॉलर ये तभी समझ पाता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ता है। जब वो देखता है कि अच्छा, इस टाइप के रिसर्च के लिए ये टूल इस्तेमाल हो रहा है, फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च अ डिफरेंट टूल इज़ यूज्ड। तो मुझे लगता है एक तो रीडिंग उनको हमेशा अंडरगो करनी चाहिए और दूसरा ये कि ये जो बैरियर्स आते हैं कि भई आपके रिज़ल्ट सही नहीं आए या आपको लगा कि भई हमारे माय डेटा वाज़ नॉट इनफ, तो आपको टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, टेस्ट ऑफ चेकिंग वेदर योर डेटा वाज़ करेक्ट और नॉट, आप ये सब चीज़ें पहले से ही टेस्ट कर लें। और इनके लिए आजकल बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स हैं, जिससे आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा आपकी रिसर्च के लिए वैलिड है कि नहीं। Because many a times the data that you collect is not suitable for your research. Framing the right type of questionnaire, उस क्वेश्चनर में सही क्वेश्चंस पूछना, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएँ, वो भी हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट है टूल, जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। How important it is to publish the research papers during PhD? रिसर्च पेपर्स को जब हम पीएचडी के दौरान पब्लिश कर रहे हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट है मैम? आपने कितने रिसर्च पेपर्स अभी तक पब्लिश किए हैं? अपने बारे में भी प्लीज़ थोड़ा-सा। जैसे मैंने स्कोपस में भी पेपर मेरा पब्लिश हुआ है, मेरा इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड में भी बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर पब्लिश करने के का पर्पस ये होता है कि भई आप जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं, हुँ, उसको आप कितना डीपली पढ़ रहे हैं, उसमें आप कितने नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर पाते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आप एक रिसर्च लिखते हैं, तो इट बिकम्स अ कंट्रीब्यूटर टू अदर रिसर्चर्स आल्सो, कि भई वो आपके रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, वो नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करेंगे, आपकी रिसर्च की लिमिटेशंस जो है, मे बी इट
comes up to be a new topic for some other researcher. हम्म तो रिसर्च पेपर लिखना ऐसे ज़रूरी है कि क्योंकि उस सब्जेक्ट एरिया में क्या-क्या काम हो रहा है, क्या-क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप किसी एरिया में रिसर्च कर रहे हैं और आप उसके बारे में और रिसर्च पेपर्स लिखते जाएँ, तो मुझे लगता है वो एक वैल्यू एडिशन होता है फॉर अदर रिसर्चर्स एज़ वेल। बिल्कुल। मैम, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट स्किल्स हैव हेल्प्ड यू टू सक्सीड इन योर रोल? अभी तक जितनी भी आपकी जर्नी रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं टू सक्सीड इन असिस्टेंट प्रोफेसर, इन बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर? I think the first and the most important skill is to be a learner. मतलब आई एम अ टीचर आई नो बट आई एम स्टिल अ लर्नर आई स्टिल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे और मुझे लगता है कि अगर वो स्पिरिट आपके अंदर होती है कि भाई आपको हर दिन कुछ नया सीखना है और कोशिश करना है कि हर दिन हम अपने बच्चों को भी कुछ नया डिलीवर करें तो दैट इज़ व्हाट कीप्स अस अलाइव in this environment because we are exposed to so much knowledge as I mentioned earlier also and so much information overload है information का तो हम critically choose करें कि what is the right information for us we use it we analyze it and we use it to our advantage I think that is more important और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि एक तो कभी गिव अप नहीं करना है चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ के you should never give up you should be a continuous reader read newspaper read new articles अपनी बुक्स पढ़िए ट्राई टू फ्रेम गुड आंसर्स यू कैन यूज एआई फॉर योर हेल्प बट खुद से भी आप उसमें आप एआई को अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज करिए ना कि उसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह कि भाई आपको आंसर मिल गया तो आपने बस वहां हाँ, फुल स्टॉप वो लगा दिया शॉर्टकट की तरह यूज़ नहीं करना है। एग्जैक्टली आप सोचिए कि आप इस चीज को और बेहतर क्या कर सकते हैं इसमें तो आप उस तरह से उसको इस्तेमाल करिए Being in academics for almost like 10 years, right? मोर देन 10 years now. More than 10 years. तो what had been the most rewarding part जो आपको लगा हो कि भाई ये तो rewarding part है इसलिए and that is keeping you motivated till date? I think the most rewarding aspect for me is that, you know, being able to instill confidence in my students. If I'm able to instill confidence, if I'm able to see that because of, because of me, even if a single child is able to progress, if they're able to imbibe good qualities, they're able to understand the subject matter, वो मेहनत कर रहे हैं, हम्म वो पर्सिविरेंट हैं, डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट है और मैं हमेशा अपने क्लास में कोशिश करती हूँ कि बिसाइड्स गिविंग द सब्जेक्ट मैटर आई ऑल्सो इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम और जब वो मुझे अगले दिन बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट होता दिखता है कि भाई पहले दिन क्लास में आपके कोई बच्चा कुछ नहीं बोला बट अगले अगले दिन दे आर रेजिंग देयर हैंड्स कि I want to speak in your class. हाँ So that is something, which gives me a lot of happiness, and that is a reward for me. That if I'm able to make students speak in the class, if they're able to, go out with confidence and be in successful careers, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है. जैसे कि आपने मेंशन किया, बच्चे मैम तभी क्लास में बोलते हैं जब वो टीचर के अराउंड कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? Comfortable. व्हेन टीचर इज मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन टू स्पीक, बहुत से टीचर्स में ये क्वालिटी लैक करती है, जहाँ पे बच्चे डरते हैं कि भाई अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं डांट ना पड़ जाए। लेकिन आपके बिल्कुल. अंदर हमेशा ये था कि यू ऑलवेज मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू स्पीक अप एंड टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू वर ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर्स, हमेशा। Thank you so much. I am so happy. Hmm. हाँ, मैम कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने यूजी पीजी में सही से पढ़ नहीं पाते हैं। उनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आता है, दे हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट लाइक 55 जो कि नेट के लिए इनफ है। फिर उनको ये लगता है कि वो नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाएँगे। तो क्या आपको ये लगता है मैम कि अगर बच्चे ने यूजी पीजी में पढ़ाई नहीं करी है तो मतलब वो नेट जेआरएफ दे या ना दे, ऐसा? मुझे लगता है कि अगर बच्चे का उस फील्ड में इंटरेस्ट है हुँ, तो वो ज़रूर दे क्योंकि नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन का एक डेडिकेशन लेवल अलग ही होता है। मेबी आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स इन योर यूजी और पीजी एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि तब बच्चे को पता भी नहीं हो कि मुझे क्या करना है। और बिल्कुल। बच्चा पीजी में जब आता है तो थोड़ा-सा और मैच्योर होता है, वो समझता है चीज़ों को, उसे लगता है कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल और बच्चा तब रियलाइज़ करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक बच्चे अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को
समझ ही नहीं पाते. And when हम्म they come to a UG program, I have seen students, so many students qualifying net with a very average percentage in their UG or PG. और उन बच्चों ने दिल लगा के मेहनत करी और आज वो JRF हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो रिसर्च की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग लो एट योर यूजी और पीजी लेवल. आई थिंक वंस यू आर फोकस्ड, वंस यू आर कमिटेड, एक बार आपने ठान लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता वो करने से जो आप करना चाहते हैं. बिल्कुल। मेरा भी जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो देयर वर सम सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से मेरे मास्टर्स में स्कोर ओके नहीं था। लेकिन हम्म. आई हैव आल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट ट्वाइस। आपके गाइडेंस में यू हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्ट हमेशा। तो दैट इज व्हाट आई No, वांटेड टू शेयर। I would like to state that Shivanshi, I clearly remember the struggle that you and your family was going through. I remember you used to call me and tell me कि मैम ऐसे हो रहा है and I am not able to focus. And let me tell you, whatever contribution has been mine, that is secondary. But the major contribution has been on your part because तुमने कभी give up नहीं किया. तुमने ठाना कि मैं करूंगी और तुमने बहुत मेहनत करी. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर. एंड आई एम सो ग्लैड, सो सो प्राउड ऑफ यू टू सी यू लाइक दिस. मुझे मतलब लग नहीं रहा है कि ये शिवांशी वो थी जिसको मैंने पढ़ाया था. लुक एट यू, how confident you are, such a good communicator you have become. So I think this is what other students should learn from you. And I'm going to share this with other students of mine and tell them and give your example to the students कि अगर आपने ठाना है तो आप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आपका आपकी जर्नी में व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम? मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट सबसे बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है मेरे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम नहीं है. तो अगर मेरे स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव है, दे आर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट दे आर गोइंग टू फेस, और अगर वो फोकस हो जाए डे वन से क्लासेस के अंदर, तो आई थिंक ये जो जर्नी स्ट्रगल की होती है थोड़ी कम हो जाती है बच्चे के लिए. क्योंकि इनिशियली बच्चों को लगता है कि नहीं, अभी अभी बहुत समय है, अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. और इसीलिए जब भी बच्चा हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आता है एट माई कॉलेज, इन माई क्लासरूम पर्टिकुलरली, तो फ्रॉम डे वन आई टेल देम दैट यू शुड बी फोकस्ड. इसलिए मैं उनको बोलती हूँ ऑलवेज राइट योर गोल्स. अगर आप अपने गोल्स लिखेंगे, आप अपने लिए प्लानिंग करेंगे, मेक शॉर्ट मैनिफेस्ट। टर्म गोल्स. यस, मैनिफेस्ट एंड राइट इट डाउन. इफ यू राइट इट, हाफ द जॉब इज डन. तो आप लिखिए आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में. तो आपके गोल्स डिफाइन होने चाहिए. यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, और उसके लिए आप यू शुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग. You should keep on adding something to yourself every day. बिल्कुल। That is what I believe. हाउ कैन स्टूडेंट्स बैलेंस एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स कॉलेज वॉलेज जाते हैं बच्चे, लेकिन हाउ कैन दे बैलेंस एकेडमिक्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज देयर स्किल डेवलपमेंट? वो कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीजें? आई थिंक इसके लिए हम लोग ने बचपन से ही सुना है टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट। और वो हम लोग फेल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते तो बहुत शिद्दत से हैं कि हाँ हम इसको फॉलो करेंगे. बट somewhere down the line, it goes haywire and we get confused. Some other things come up. We have to, prioritize something else over so many other things. तो आई थिंक वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है जो है तो मुश्किल. आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर somebody to accommodate the time accordingly for each day. लेकिन अगर हम कुछ हद तक उसको मैनेज कर लेते हैं, हम एक माइंड में एक प्लान बना लेते हैं कि ओके 60-40 का रेशियो, ओके 60% आई विल गिव टाइम टू दिस थिंग एंड 40% आई विल गिव टाइम टू दिस थिंग. तो आई थिंक दैट विल सर्व एज एडवांटेज. बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि क्या कोई टाइम टेबल है, क्या कोई फिक्स टाइम है यू गेट अप इन द मॉर्निंग, इज देयर अ फिक्स टाइम यू स्लीप इन द नाइट. तो आई सी दैट टुडे Gen Zs have no fixed time. So I think if they're able to craft this for themselves कि okay, I don't have a fixed time, but 2 hours I have to dedicate to UGC NET preparation, or 3 hours each day I have to dedicate to UGC NET preparation. So I think that is enough for them. मैम आजकल जैसे देख रहे हैं बच्चे, दे आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया। तो Yeah. व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया को ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, या फिर उसको कैसे मैनेज करें बच्चे? आई थिंक सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कि 99.99% स्टूडेंट्स होंगे. शायद ही 0.1 हाँ 0.01% ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल।
उसमें नहीं होंगे। कई बार एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है, ऐसा नहीं है कि इट इज समटाइम्स समथिंग दैट आपने एक दो रील्स देखी तो आपका थोड़ा सा मोमेंटरी शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम समथिंग टू समथिंग एल्स। तो कई बार आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, कई बार आप यू गेट टू सी सम मोटिवेशनल थिंग। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट दे आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज एल्गोरिदम बेस्ड। बिल्कुल It will show you what you want to see. So if you choose the right thing to your advantage, for example, if you are preparing for UGC NET, so try to look into some knowledge of research, try to gain some insights about a particular subject. तो आपको कंटेंट भी वैसा ही दिखने लगेगा, तो वो आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और वो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर भी होगा कि आप कोई नई चीज़ देखेंगे और आप कोई पुरानी चीज़ नए तरीके से भी देख सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया अगर बंद कर सकते हैं बंद कर दें, तो अगर ये प्रयास कर सकते हैं वो तो कर लें, लेकिन अगर नहीं बंद कर सकते हैं तो चूज़ करें कि उनको क्या देखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप तो मार्केटिंग के प्रोफ़ेसर हैं, तो एवरीथिंग इज़ एल्गोरिदम बेस्ड। हम कुछ भी अगर सर्च कर रहे हैं, तो उसके एड्स हमारे सोशल मीडिया पे आने लगते हैं और फिर उस पे होता है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है मैम सोशल मीडिया, जहाँ पर बच्चे एकदम फिसल जाते हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है कि बल्कि द अदर डे वी वर डिस्कसिंग इन द क्लास अबाउट दिस एस्पेक्ट, तो मैंने बच्चों से बोला कि जब आप इंस्टाग्राम खोलिए तो अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और वो अलार्म बजे तो इसका मतलब आपको अब वो चीज़ बंद कर बंद कर देनी है। देनी है। तो अगर आप ये कर लेंगे और उस समय आप बंद कर दीजिए, मतलब ये नहीं कि अलार्म को बंद करके आप फिर वापस उसमें स्विच कर गए। तो अगर आप अलार्म लगा के फ़ोन उठाइए और एक फिक्स टाइम के लिए रख लीजिए कि मुझे 20 मिनट ही इंस्टाग्राम चलाना है, तो 20 मिनट बाद आप अपना फ़ोन किनारे रखिए, कम बैक टू योर प्रिपरेशन। एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए कि भई पढ़ाई पे असर ना पड़े सोशल मीडिया का। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये तो हो गई सारी पढ़ाई की बातें। अब एक क्विक रैपिड फायर मैम हो जाए आपके साथ? बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट? ठीक है, तो बुक्स और पॉडकास्ट? आई थिंक बुक्स। ओके। व्हाट डू यू लाइक मोर, रिसर्च वाला फेज़ आपका या फिर टीचिंग? I think teaching is more exciting. It is more, helping me to get new perspectives because it comes out from, various new faces that are sitting in the classroom. तो नए perspective मुझे हर बच्चे से मिलते हैं। नाइस। ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, ये वाला थोड़ा-सा मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि आप ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को देखती हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस में देखती हूँ। तो आपको क्या मुझे लगता लगता है है? आजकल मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस तो हमेशा से एक इफ़ेक्टिव मीडियम रहा है। बिल्कुल। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है एक क्लास में ब्लैक बोर्ड का, एक टीचर का। बट आई थिंक ऑनलाइन मैं इसलिए भी सहमत हूँ क्योंकि जो स्कोप हमें ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलता है, वो स्कोप हमें एक ऑनलाइन क्लास में मिलता है। क्योंकि आप आज दूर बैठे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसके पास भी जो नॉलेज है, वो आप घर बैठे अगर ग्रैब कर सकते हैं एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम्स एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर फिर कुछ नहीं है। हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी लड़कियों की अगर मेजरली बात करें तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि भाई आप ऑफलाइन में जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, या फिर आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो ऑनलाइन में उन लड़कियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है मैम, है ना? बिल्कुल आपको ऑनलाइन कंटेंट का फ़ायदा मिल रहा है, आपका टाइम सेव हो रहा है, हुँ, आपका जो एफर्ट है वो कम हो रहा है, आप अपने घर में कन्वीनिएंटली बैठ के पढ़ सकते हैं हुँ, और आपको कहीं भी मूव नहीं करना। जैसे बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको अकोमोडेशन देखना है, खाना-पीना देखना है, तो बिल्कुल, वो सब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक स्टूडेंट लेवल पे चीज़ें आपके लिए कम्फर्टिंग हो जाती हैं। राइट। फिर कॉफ़ी या टी? टी। ओके, चाय हुँ, पर्सन हैं आप मतलब? बिल्कुल। ठीक है। वन हैबिट दैट हैज़ चेंज्ड योर लाइफ मैम? अ very difficult to answer this question because there are so many things that change you as you grow and evolve in your life. But I think I once again I would say continuous learning is something that keeps me alive. बिल्कुल। वन लाइफ लेसन दैट यू विल ऑलवेज़ कैरी विद यू? One life lesson that I will always carry with me is that one should never try to copy somebody else. We should always try to create our own selves as the best version of oneself. So we should not copy others. We should be, because everybody is unique.
एंड एवरीबडी इज क्रिएटिव इन सम वे और द अदर. तो एक तो ये लाइफ लेसन जो मैंने हमेशा सीखा है कि भाई बी योरसेल्फ, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज टू नेवर गिव अप. कम व्हाट मे, यू शुड नेवर गिव अप. बिल्कुल। कई बार होता है कि बच्चे जो है भटक जाते हैं अपने रास्ते से। उनको लगता है कि भाई क्विट कर देना एक ईज़ियर ऑप्शन लगता है। तो आई थिंक कि दे शुड नॉट डू दैट। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि स्टे कनेक्टेड विद द प्रोफेसर्स, स्टे कनेक्टेड विद योर मेंटोर्स जो आपके साथ हमेशा रहे हैं, तभी आपको जो है सही गाइडेंस मिल सकता है मैम, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप उनके साथ टच में रहेंगे और उनके साथ हमेशा एक बॉन्ड बना के रखेंगे, तो वो आपको प्रोफ़ेशनली नहीं, इमोशनली भी टीचर्स स्टिक अराउंड विद देयर स्टूडेंट्स. और वो भी सपोर्ट मुझे लगता है कई बार यू डोंट गेट इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर यू मे माइट गेट इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, बट समटाइम्स टीचर्स आर आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स. बिल्कुल। तो वो सपोर्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपको हेल्प करता है कि आप कैसे ईज़िली अपने लिए एक अच्छा पाथ क्राफ्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रही है मैम आपके साथ अभी तक। बच्चों को मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें सीख के जाएँगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जाते-जाते अगर ये पॉडकास्ट जो अभी हम कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद अगर कोई बच्चा देख रहा है, इमेजिन दैट स्टूडेंट इज़ वाचिंग आवर कन्वर्सेशन 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो क्या एक ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहेंगे कि वो बच्चा हमेशा याद रखे? ओके. 5 साल बाद तक बच्चे याद रखेंगे ये मुझे मतलब बड़ा वैसा क्वेश्चन लगता है, बट स्टिल आई थिंक देयर आर सम स्टूडेंट्स हू रिमेंबर यू फॉर अ लाइफ टाइम. और मैं चाहूँगी बच्चे मुझे ऐसे याद करें कि अ, वो मुझे याद करके हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, एक पर्पसफुल करियर अपने लिए चूज़ करें, एक हुँ। ऐसा करियर जो रेलेवेंट हो, जो उनके इंटरेस्ट से अलाइन हो. और हम हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, वो काइंड हों, कंपैशनेट हों, वो क्लासरूम सेशंस को याद करके मोटिवेटेड फ़ील करें. कभी कहीं लाइफ़ में फँसे हों, तो शायद कोई मेरी बात याद करके उनको क्लैरिटी मिले या कोई सॉल्यूशन मिले लाइफ़ का. तो मुझे लगता है इस तरह अगर बच्चे मुझे याद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी. और ऐसा हुआ भी है कई बार कि स्टूडेंट्स ने पास कर लिया है, 5 साल बाद, 4 साल बाद मुझे कॉल किया है, मुझसे बात करी है. तो बताया है कि मैम आज मैं ये कर रही हूँ या आज मैं ये कर रहा हूँ, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी रिवार्डिंग. और मुझे लगता है बच्चे अगर या आपको याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आज के ज़माने में यही बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है. बात है, सही बात है मैम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके यहाँ पर और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। इसी के साथ मैम वाइंड अप करते हैं हम आज का सेशन। इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग उत्कर्ष। Thank you so much, Shivanshi. Thank you, Utkarsh team, for having me. And I wish you all the best for your new venture and for this preparation that you are, guiding students for. And I hope that many, many students get success by your, guidance and थैंक यू सो education. मच। थैंक यू सो मच Thank मैम। you. Thank you. तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।